So, this is the second lecture of life processes. In the last lecture, we discussed photosynthesis. The autotrophs plants means which make their own food by itself with the help of sunlight and chlorophyll. So, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो सनलाइट है दैट इज नेसेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ मेसोफिल सेल and they are the green color of the plants that leaves, that is because of the chlorophyll. Chloroplast is a substance, here you can see. And this is the reaction on the right side. 6 carbon dioxide plus 6 water, sunlight, chlorophyll to form glucose C6H12O6 and 6 oxygen. So it means during the photosynthesis, what the chlorophyll do, it absorb the sunlight, transfer its energy to the carbon dioxide and water molecule. Then carbon dioxide and water molecules, they react to form glucose, and glucose is the main food for the plants. Now from where this water and carbon dioxide come? Obviously water come from the roots. The plant take water from the earth through roots. And where from the carbon dioxide come? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ओपन स्टोमेटा. देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स व्हिच इज कॉल्ड स्टोमेटा. सो दिस हियर कार्बन डाइऑक्साइड come inside and oxygen go outside because we have a carbon dioxide gas and in the product side we have a oxygen gas. So this exchange of carbon dioxide and oxygen that take place through the stomata. So this is a diagram of open stomata and this is a closed stomata. So the mechanism of opening and closing stomata, that is not there in the syllabus. So just we must know from where the water comes and from where the carbon dioxide comes. तो वाटर तो प्लांट कहाँ से लेता है? थ्रू रूट्स. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? मीन्स दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा. Okay, and when there is a high, or you can say dry conditions take place, temperature become high, then stomata automatically closes to prevent the transpiration. Okay, so now in the next part of this chapter, we will discuss about the heterotrophic nutrition. Then we will discuss nutrition in the human beings. So heterotrophic nutrition is of 3 types. Like first part is the saprophytes nutrition, second part is the parasitic nutrition, and third part is your holozoic nutrition. Okay, so these are the different ways how the animals they take their food. How some organism they take their food from outside and break them into smaller pieces so that body can absorb it. Like saprophytes are the organism which obtain food from dead or decaying organic matter. जो भी dead सड़ा हुआ खाना decaying खराब हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, वही उनका फूड है. तो इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया और फंगाई की. पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, मतलब उसी के ऊपर ही वो रहते हैं. इसमें कस्कुटा की भी एक एग्जांपल है जिसको अंबर वेल बोलते हैं हम. अंबर वेल, टिक्स भी है, लीचेस भी है, टेलवॉर्म्स भी है ना. टिक्स भी इसकी एग्जांपल है. और इसकी एग्जांपल में यहाँ पे टेलवॉर्म तो लिखा हुआ है, हम टिक्स भी लिख सकते हैं, है ना. और इसमें अंबर वेल जिसको कस्कुटा बोलते हैं, CUSCUTA अंबर वेल, येलो कलर की बेल होती है ना. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, लेकिन फूड उन्हीं से ही लेते हैं. जैसे मॉस्किटो है, मारेगा नहीं, फूड लेगा. टेलवॉर्म इंटेस्टाइन में रहता है, फूड खा रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को वो मारता नहीं है. तीसरी कैटेगरी में आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम सब लोग आते हैं. इसमें क्या होता है? इंजेक्शन होती है, मींस इनटेक ऑफ फूड होता है, डाइजेशन होती है उसकी, है ना. उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू इंटेस्टाइन, असिमिलेशन होती है, हाउ टू सप्लाई द एनर्जी टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी. इन लिक्विड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, तो ये सब प्रोसेस के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है दे गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. उसमें एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यही सब डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो उसका एलिमेंट्री कनाल है ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे कैसे हम जो है कौन कौन से पार्ट का क्या रोल है, ये नेक्स्ट उसमें थोरोली हम कर रहे हैं अभी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, सो in the nutrition in human we have the various parts like we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Okay, so the first part by which we take food, that is called a buccal cavity, and this is also called a mouth. Okay, so from here we intake food in any form. तो किसी भी फॉर्म में आप फूड ले रहे हो, सॉलिड लिक्विड जो भी है, उसके लिए फर्स्ट है हमारा माउथ, और ये पूरे का पूरा जो फूड हमने लिया है ये सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक में से जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपका फूड सॉलिड है तो उसके लिए सेकंड जो है हमारा ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट जो काम करेगा वो है टीथ। टीथ क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, दैट विल ब्रेक द फूड, क्रश इट, है ना। Then we have a tongue. While crushing, there are some salivary glands, है ना। salivary glands they produce saliva. Saliva तो वैसे ही आ जाता है, अगर आप किसी खाने की चीज का नाम लो तो मुंह में पानी सा आ जाता है, वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, saliva होता है ना। That contains some enzymes which are used for breakdown of the very complex food that we take. तो what is the role of tongue? Tongue is to tasting and rolling the food, है ना, tasting and rolling the food, to mix up the food with the saliva, you know. What the salivary gland do, they produce saliva. पानी आता है मुंह के अंदर, उसको क्या कहते हैं, सलाइवा बोलते हैं। और टंग का रोल क्या है कि इस सलाइवे के साथ फूड को थॉरली जो है वो मिक्स कर देता है। टेस्ट भी टंग की वजह से आता है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड्स, है ना। रोलिंग ऑफ द फूड मीन्स टू मिक्सिंग अप द फूड विद द सलाइवा। और टीथ का काम क्या था, उसने जो फूड हमने लिया सॉलिड स्टेट में उसको ग्राइंड कर दिया, क्रैश कर दिया, ब्रेक कर दिए छोटे छोटे पीसेस में। अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, है ना, जो एंजाइम्स हैं, कंटेन्स एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं हम, सैलवरी अमाइलेज। ये एंजाइम जो है सलाइवा में होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम है टू ब्रेक डाउन स्टार्च, है ना। जो भी हम फूड लेते हैं उसमें स्टार्च जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हम स्टार्च को फूड ले लेंगे, वी ब्रेक डाउन आवर फूड टू सिंपल शुगर, फूड टू सिंपल शुगर। तो मेनली स्टार्च जो भी हमने फूड लिया, है ना, फूड, और उसके साथ क्या मिक्स हो गया हमारा, दिस सैलवरी अमाइलेज, दैट इज एन एंजाइम। तो बन क्या गया हमारा वही शुगर, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम, कौन से पार्ट तक पहुंच गए, माउथ, इनटेक ऑफ फूड होता है। उसके बाद टीथ ने क्या किया, फूड को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। टंग का क्या काम है, टू टेस्ट एंड रोलिंग द फूड, टू मिक्स अप द फूड विद द सलाइवा। सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सैलिवरी ग्लैंड। और सलाइवा में बेसिकली क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज, है ना। एंड दैट अमाइलेज, उसका काम क्या है, टू ब्रेक अप द फूड इनटू सिंपल शुगर। इसोफेगस एंड स्टमक। इसोफेगस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज द इसोफेगस। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट्स आल्सो नोन एज अ फूड पाइप, है ना। दिस इसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, सी इन द पिक्चर, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ फूड पाइप, है ना। तो फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, दैट इज कॉल्ड अ इसोफेगस। Stomach is a very good, very big organ of the body that which expand when food enter it. Okay, so what is the role of esophagus? The role of esophagus is to
take the food from mouth to the stomach by some contractions or relaxation movements, that is called a peristaltic movement. Okay, so taking food from mouth to stomach by peristaltic movement. पेरिस्टालिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जैसे हमारी जो फूड पाइप है वो ऐसे है ना, तो यहां पे हमारा आ गया फूड पार्टिकल, दिस इज आवर फूड। तो यहां से कंट्रैक्ट हो जाएगी, यहां से थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, तो फूड जो है वो ऐसे आगे जो है मूव करता रहेगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो इसमें मसल्स होते हैं, ये जो फूड पाइप है वो मसल कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब फूड पार्टिकल फूड यहाँ पे आ गया तो यहाँ से वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ से वो थोड़ा सा खुल जाएंगे, फूड पार्टिकल जो है वो आगे मूव कर देगा, धीरे धीरे ऐसे करते करते वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? स्टमक तक। सो सच मस्कुलर मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओके, स्टमक। स्टमक क्या है? दिस इज द लार्ज ऑर्गन of our alimentary canal, and it expands when food enter it। जब फूड इसमें एंटर करेगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। और इसका काम क्या है कि इट हैज सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। इट रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, और जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा, जो स्टमक के अंदर रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? जब फूड वहां पे पहुंचता है ना। तो उसमें क्या होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? दैट कंटेन्स 3 थिंग्स। वन इज HCl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए पेट का जो नेचर है वो एसिडिक होता है ना। दूसरा जो है उसमें पेप्सिन है, पेप्सिन। और तीसरा जो उसमें है म्यूकस। तो ये 3 चीज हैं जो ये किसमें होती है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस को कौन रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर है। कब रिलीज करेंगे? जब वहां पे हमारा फूड है जो पहुंचेगा थ्रू दी इसोफेगस। ओके, तो HCl का रोल क्या है पहले हम लिख दें। HCl क्या करता है? दैट किल्स बैक्टीरिया, है ना, एंड इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। मेक्स मीडियम एसिडिक। तो एक तो मीडियम को एसिडिक कर देगा जब HCl रिलीज होगा, एक उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं फूड में आगे गलती से हमने खा लिए तो वो वहां पे आके मर जाएंगे। इट किल्स बैक्टीरिया। ओके, पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन जो हमने फूड खाया तो उसमें प्रोटीन्स हैं, तो ये इसका काम है मेन कि इसने प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में चेंज कर देना है ना। अमाइनो एसिड जुड़ के लंबी चेन बनती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन हम खा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से खा रहे हैं, है ना, दाल वगैरह खाई, उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन को तोड़ के क्या कर देगा? ये अमाइनो एसिड बना देगा। इसका काम ये है। और म्यूकस का काम क्या है कि ये जो स्टमक की अंदर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, उसको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट दी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। हाँ, जो HCl में उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टमक अपने आप ही म्यूकस भी रिलीज करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है? एक तो मीडियम को एसिडिक कर देता है, दूसरा बैक्टीरिया हार्मफुल जो हमने गलती से निगल लिए उनको खत्म कर देगा,
पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करेगा, और म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग है जो, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, है ना, इसकी लेंथ बहुत होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस। ओके, और एक यहाँ पे स्पिंचर मसल्स होते हैं, दैट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, है ना, स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज रेगुलेटेड by special type of muscles, that those muscles are called SPHINCTER, sphincter muscles. So these muscles, they control the flow of food from the stomach to the small intestine. Okay, तो ये जो small intestine है, that is the longest part of alimentary canal. That is the longest part of, it is your longest part of AC, alimentary canal. Okay, length of small intestine differ in various animals depending upon the food they take. जैसे हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, दे हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि उसमें सेलुलोज, क्योंकि जब कोई हर्बीवोरस है, दे ईट ग्रास में ज्यादा होता है सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो उसके लिए इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ ज्यादा होती है ना। तो हर्बीवोरस जो है, हर्बीवोरस हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, SI, उसकी जो इंटेस्टाइन है लॉन्ग होती है ना। कार्निवोरस है, जैसे टाइगर्स हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है। कार्निवोर्स है स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट लिख देते हैं, जब शॉर्ट, उसकी लेंथ कम होती है। मतलब कहने का ये कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ डिपेंड करती है कि एनिमल ने फूड किस फॉर्म में लिया है। ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो भी हमने फूड में लिए हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही आ जाता है हमारा इसमें जो इन्वॉल्व है चीज, वो है लिवर। लिवर क्या करता है भाई, इट प्रोड्यूस बाइल जूसेस, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूसेस एंड बाइल सॉल्ट, बाइल जूसेस एंड बाइल सॉल्ट ये प्रोड्यूस करता है। बाइल जूसेस क्या है, बाइल जूस का काम क्या होता है, इट मेक द सोल्यूशन, इट मेक्स द मीडियम अल्किलाइन, मतलब बेसिक। अब स्टमक में मीडियम एसिडिक था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही मीडियम जो है वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, किसने कर दिया, बाइल जूस, जो कि लिवर ने सिक्रीट किया। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है भाई, ये बाइल सॉल्ट करता है जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं फूड के अंदर, फैट ग्लोब्यूल्स को वो ब्रेक करता है, ब्रेक्स फैट ग्लोब्यूल्स, इट ब्रेक्स फैट ग्लोब्यूल्स, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन, जैसे फैट का बड़ा ग्लोब्यूल्स मीन्स राउंड सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में, जैसे एक ऑयल का बड़ा ड्रॉप हो तो उसको तोड़ना होगा ना छोटे छोटे ड्रॉप्स में,
तो एक काम जो है वो बाइल सॉल्ट करता है। इसके बाद जो है इसी के अंदर ही जो इन्वॉल्व है डाइजेशन के अंदर, वो हमारा पार्ट आ जाता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। ये क्या करता है, ये सिर्फ स्टोरेज करता है, इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बस इनकी ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। गॉल ब्लैडर का ये रोल है। साथ में हमारे पास एक छोटी सी आप डायग्राम में देख रहे हो स्ट्रक्चर, पैंक्रियास नजर आ रहा है। पैंक्रियास, पैंक्रियास का काम क्या होता है बेसिकली, ये इंसुलिन भी रिलीज करता है टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, है ना। तो ये क्या क्या रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन, है ना, पिप्सिन जैसा लग रहा है ये भी ट्रिप्सिन, और दूसरा ये रिलीज करता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का क्या रोल है, जो रोल पिप्सिन का था, क्या करेगा, ब्रेक प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। पिप्सिन का भी यही काम था जो सेलरी माइलेज में, है ना। तो दूसरा अपने पास है लाइपेज। ये लाइपेज, लाइपेज क्या करता है भाई, इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट, इट ब्रेक एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफिकेशन जो उसने कर दी थी, है ना, बाइल सॉल्ट ने एमल्सिफिकेशन कर दी, जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं छोटे छोटे पीसेस, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियास के अंदर ही इंसुलिन भी रिलीज करता है, लेकिन इंसुलिन का रोल डाइजेशन में नहीं होता। जैसे ना जिसको शुगर हो उसकी पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज नहीं करती। इंसुलिन का रोल होता है टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड, तो उसका रोल डाइजेशन में नहीं रहता, इसीलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस जो है वो नहीं करते। ओके, उसके बाद जो स्टार्च है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ना शुगर में, या ग्लूकोज बोलते हैं इसको। फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में। तो ये सारी कन्वर्शन यहाँ पे हो जाती है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या सिस्टम है कि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही विलीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही वहां पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम विलीज बोलते हैं। विलीज होती है जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ऐसे ऐसे, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो विलीज किसको कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस inside small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, और ये करती क्या है, दे इंक्रीज surface area, they increase the surface area of absorption। तो यहीं पे तो फूड ने एब्जॉर्ब होना है, तो उसीलिए उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी। एंड विलीज आर स्प्लाइड, ये जो विलीज हैं दे आर स्प्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, स्प्लाइड फूड टू ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स को फूड है जो वो सप्लाई करती हैं। एंड दीज ब्लड वेसल्स दे टेक फूड टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एंड दीज ब्लड वेसल्स टेक फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। तो जितने भी बॉडी के अंदर सेल है सबको ये फूड पहुंचाती है, मतलब एनर्जी देती है।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट इसका एलिमेंट्री कनाल का, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, दैट इज LI। तो इसमें क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, वेस्ट, जो बॉडी के काम का नहीं है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड दैट सेंट टू LI, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब वाटर। तो इसकी जो वॉल है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम दिस मटेरियल, है ना, फ्रॉम दिस वेस्ट मटेरियल। तो जितना एब्जॉर्ब होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दैट्स व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल, rest of the material removed from the body, वो बॉडी से बाहर चला जाता है, removed from the body via anus, that is the last terminal part, means alimentary canal that starts from mouth and ends at anus. So this is about the alimentary canal, that is the nutrition in humans, कहाँ से फूड एंटर होता है, कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम है जो उसकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो ऑब्जर्व होता है, और वेस्ट मटेरियल दैट गो आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस।